এফালে তুংগত উঠিছে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেৰে ভৰিছে এতিয়া পশ্চিমবংগ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ভেটিত বিজেপিৰ এতিয়া জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান এণ্টালি আৰু বেলেঘাট সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফডণবীছৰ প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা টিব্ৰিৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত উপস্থিত হৈছে গৈ অসম লাইভ 24ৰ দিল্লীৰ ব্যুৰো চাণক্য হাজৰিকা আৰু ষ্টেট মিৰৰৰ অসম লাইভ 24 ভগ্নী চেনেল ষ্টেট মিৰৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতেন্দ্ৰ চৌহান তাত যেহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এদৰে চলি আছে কলকাতাৰ পৰা আমি লাইভ দেখাইছো কলকাতাৰ পৰা লাইভ দেখাইছো আমাৰ দুইগৰাকী সাংবাদিক উপস্থিত আছে জিতেন্দ্ৰ চৌহান আৰু আনফালে আমাৰ অসম লাইভ 24 দিল্লীৰ ব্যুৰো চাণক্য হাজৰিকা চাণক্য আৰু জিতেন্দ্ৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো বৰ্তমান কেনে পৰিৱেশ আৰু কোনোবা প্ৰাৰ্থী যদি আছে প্ৰিয়ংকা টিব্ৰিৱালক যদি আপোনালোকে লগ পাইছে তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতক আৰু কেনে ধৰণৰ মুঠতে নিৰ্বাচনী তাত বতাহ তাক দেখুৱাওক পশ্চিমবংগৰ যি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছে দেখিব পোৱা গৈছে যে বিজেপি এবাৰ প্ৰচাৰ তুংগত হৈছে মই তেওঁলোকক জানিবৰ চেষ্টা কৰিম দেবেন্দ্ৰজী এয়া দেখিবলৈ পোৱা দেবেন্দ্ৰ ফডণবীছ ইতিমধ্যে এণ্টালি আৰু বেলাঘাট যি বিধানসভা আছে এই দুটা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আহিছিলে তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ বিজেপিৰ এবাৰ প্ৰচাৰ কিছু জোৰদাৰ প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ এবাৰ টি এম চিক 50-50 বিজেপি আৰু টি এম চি 50-50 বুলি জনোৱা হৈছে কাৰণ দেখিবলৈ পাইছে এয়া মই দেখুৱাম দৃশ্য এয়া মানুহৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে এয়া পশ্চিমবংগৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমি অসম লাইভ 24 তথা আমাৰ ভগ্নী চেনেল ষ্টেট মিৰৰ আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাইছে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ যি বেলাঘাট আৰু এণ্টালি এই দুটা বিধানসভাৰ আজি প্ৰচাৰ চলিছে তাত অসম লাইভ 24 উপস্থিত আছে ইয়াৰ যিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী এই বিজেপি প্ৰাৰ্থী মই ভাষ্য জানিব চেষ্টা কৰিম प्रियंका जी मुद्दा क्या होगा विधानसभा का मुद्दा क्या होगा देखिए मुद्दा है उन्नयन का मुद्दा है डेवलपमेंट का मुद्दा है सबके विकास का मुद्दा सबके अधिकार का और इस सबसे मेरा मतलब है इंटाली में रहने वाले वो हर एक इंसान से है चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आता हो मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ और डेवलपमेंट में विश्वास करती हूँ मैं चाहती हूँ कि इंटाली की हर गली मोहल्ले का चाहे वो बामनपाड़ा हो कमलडांगा हो ढापा हो धीपी हो या फूल बगान चौवन का हर जगह डेवलपमेंट हो हर किसी का डेवलपमेंट हो टीएमसी लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सांप्रदायिक खेल खेल रहे हैं बीजेपी ये मतलब उन लोगों का बोलना है मैंने अभी तो आपसे कहा कि जब इंटाली के डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो ढापा ढीपी कमरडांगा बामनपाड़ा से शुरू होकर के फूल बगान तक जाएगा चौवन भी पीछे नहीं रहेगा ऐसा ये मुद्दा हो सकता है देखिए एसआईआर ने तो अधिकार दिया है जायज़ वोटर को वोट देने का तो एसआईआर ने तो लोगों को एक मौका दिया है कि वो अपने अधिकार का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें क्योंकि इन लोगों को रोक करके इनका वोट जो है वो फर्जी तरीके से करवाता था तृणमूल महिला सबलीकरण या महिला सुरक्षा के बारे में जो देखा गया है फिलहाल ही में जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और एंटाली में जो आपका जो देखा गया है इसका माहौल इतना अच्छा नहीं है जो सिचुएशन देखा गया है तो क्या बोलना इस बार ये चेंज आएगा देखिए ममता गई 4 मई ममता गई और ये बात सबको समझ में आ गई है इसीलिए ममता बनर्जी अब खुद ही कह रही है कि अगर तृणमूल रहा तो फिर मिलेंगे ना तृणमूल रहेगा ना आपसे मिलना होगा थैंक यू ममता टिब्रिवाल कलकातार विशेषকৈ मैं कैसा एंटाली विधानसभा समष्टिर बीजेपी प्रार्थी एबार দুইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে এক তুমুল ৰণ হ'ব বুলি ধৰিব পৰা হৈছে কাৰণ এইবাৰ যে নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশেষকৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে কেইবাগৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক এয়া দেখিবলৈ পালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেবেন্দ্ৰ ফডণবীছেই হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক বা অমিত শ্বাহে বিশেষকৈ অমিত শ্বাহ 15 দিন থাকি পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব গতিকে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাওক যে বিশেষকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন অতি তুমুল হ'ব ইয়াত জনতা আছে मैं किसी জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম क्या बोलना चाहिए इस बार कैसा मतलब इलेक्शन किस तरफ जा रहा है
नहीं बोल पा रहे हैं। किस तरफ जा रहा है इलेक्शन, किस तरफ जा रहा है इस बार? बीजेपी के पास। क्यों, इशू क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है कि ये बहुत गुंडागर्दी हो रहा है। गुंडागर्दी कौन करता है? वही बीजेपी वाला सब। कौन वाला? बीजेपी वाला सब धमकाता है, ये करता है, घरवाड़ी का जबरदस्ती ये कर लेता है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार इलेक्शन का बारे में, क्या बोलना चाहते हैं? इस बार चेंज होगा या क्या कारण क्या हो सकता है इलेक्शन के? बोलने नहीं सकते हैं इससे। इशू क्या हो सकता है इलेक्शन में इस बार? वही उससे नहीं है, बोलने का मुश्किल है अभी आज इस बार का। 50-50 मतलब पहले जैसे होता था तृणमूल कांग्रेस क्लीन स्वीप हो जाता है, इस बार क्लीन स्वीप होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा, कॉन्टेस्ट होगा। মোৰ লগত এই বিষয়ে ক'বলৈ, কাৰণ মোৰ আমাৰ भगनी चैनल स्टेट मेयर আছে, स्टेट मेयर তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। इस बार देखा गया, हम लोग अगर देखें, हम लोग आसाम लाइव 24 और स्टेट मेयर दोनों आए हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है जैसे 21 में हुआ पहली। वो अगर देखा गया तो जैसे तृणमूल कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिलता है, इस बार वैसा होगा आपके हिसाब से? आप देखिए चाणक्य में आपको बताऊँ कि मैं 2021 के इलेक्शन में भी यहाँ पर आया था। और मैंने वो माहौल देखा है जब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं निकाल पाते थे, उनको निकलने ही नहीं दिया जाता था। और अभी तो हम देखें कि एक बहुत अच्छी रैली यहाँ पर हुई है, हमने देखा। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा माहौल था 21 में कि लोग झंडे तक नहीं लगा पाते थे। अभी आप देखिए यहाँ पे, आपको देखिए, मैं कैमरा में दिखाएं, यहाँ पर आपको झंडे लगे दिख जाएंगे दुकानों पर, और लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन 2021 में ऐसा माहौल नहीं था चाणक्य। यहाँ पर बदलाव बहुत देखने में आ रहा है, लेकिन हाँ, ये वाकई में टर्नआउट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वोट में बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि माहौल थोड़ा बदला ज़रूर है। एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है, और कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को लेकर बहुत आगे जाने के प्रयास कर रही हैं, क्योंकि ज़मीनी मुद्दों पर शायद उतना वो बात नहीं कर पा रही हैं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा इस पर नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है और हर वो पैंतरा अपना रही है कि किसी तरीके से जो ममता दीदी का जो किला है, अभेद्य किला रहा है पिछले 15-20 साल में, उनका किसी तरीके से ढा दे। लेकिन इतना आसान होगा नहीं, मैं आपको बता दूं चाणक्य। अभी भी ममता बनर्जी का ऐसा नहीं है कि जो एक करंट था वो कहीं गायब हो गया है, अंडर करंट अभी भी चीज़ें उनके पक्ष में है। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस बार बदलाव हो, और लगातार वो बात कह भी रही है कि ममता दीदी इस बार जा रही हैं। क्या वाकई में जाएंगी, ये तो खैर वोटर हैं, वो बताएंगे कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप बोल रहे थे कि बीजेपी बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं। अगर हम देखें 3000 वाला मुद्दा, हर महिला को 3000 हर घर में, और महिला के सुरक्षा के बारे में बोल रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं उसके बारे में। मतलब बहुत सारे मुद्दे, और जो बेरोजगार या जो स्कैम हुआ है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के हिसाब से। तो इस बार मतलब ये मुद्दे काम करेंगे? देखिए, मुद्दे सभी काम करते हैं, लेकिन किस जनता को मुद्दा अटैच कर रहा है, टच कर रहा है, वो बड़ा फैक्टर होता है। आपने कहा कि 3000 रुपया ममता दीदी बीजेपी देने की बात कर रही है, ममता दीदी भी 1500 रुपये दे रही है, और उन्होंने पैसा बढ़ाने की बात भी कही है। महिला, मुस्लिम और ममता दीदी का जो 3M का फैक्टर है ना इस बार चुनाव में, तो बहुत काम आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस पर कहीं ना कहीं बाजी खेली जाएगी। मुस्लिम वोट, महिला वोट और ममता बनर्जी का अपना एक रुतबा बंगाल में, खुद का वो वोट बैंक है। इतने सालों से वो जनता के बीच में है। मुद्दे हर पार्टी उठाती है, बीजेपी विपक्ष में है तो जाहिर तौर पर अपने मुद्दे उठाएगी और ममता बनर्जी को घेरेगी कहीं ना कहीं। लेकिन हालात ज़मीन पर कैसे हैं वो अलग दिखते हैं, और कहीं ना कहीं इस बार टक्कर तो वाकई में लग रहा है कि बीजेपी दे रही है, लेकिन इतना आसान रहेगा नहीं। चाणक्य यहीं पे रहेंगे, देखेंगे बिल्कुल क्या है, क्या नहीं, समझेंगे कि एक्चुअली में क्या करंट है। আৰু এইদৰে আমি আছোঁ অসম লাইভ 24 আৰু ষ্টেট মিৰৰ মোৰ লগত আছে। গতিকে আমি দুজনেই চাম এতিয়া প্ৰথম দিন আহিছোঁ আমি, আৰু এইদৰে প্ৰতিটো প্ৰান্তত, বিশেষকৈ প্ৰতিটো বিধানসভাৰ অঞ্চলে যাবলৈ, বিশেষকৈ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ মূল ইছ্যু কি, আৰু সঁচাকৈ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত যিদৰে কৈ থকা হৈছে, এইদৰে যুদ্ধখন হ'বনে, আৰু শেষত কোনে হাঁহি মাৰিব পাৰে, সকলোখিনি কথা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাম।